Hello students, good morning once again. Myself Ajit Singh Chauhan. Wish you a very happy, cheerful and beautiful morning. Today, after a discontinuity of 3 or 4 days, I again start my class. And today I am taking class 10, ninth class because 9th class is lagging behind. 10th and 12th are going very well. And the 9th class chapter first is started because that was running on that time, and the topic is properties of irrational number and the operation of rational and irrational number, and if the time is left then P upon Q form. Okay, so be careful because these operation, many of the students are confused in between the operation of rational and irrational, how they add, how they subtract. This is a major problem the students feel in 9th class. So please be concentrate. Let's start. Okay, now let's start, my students. Mathematics class 9th chapter 1 real number. This is part 3. As I earlier told to you, that topic is properties of irrational numbers, operation on rational and irrational. This is very important topic, so underline it. This one is very important topic. And how to get P upon Q form. If time is left then we will see. So first of all I want to tell you that, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि properties of irrational number, like rational numbers, you know very well rational number. Like rational numbers, irrational number also satisfy the commutative, associative for addition and multiplication. मैंने लिखा है फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. सब्ट्रैक्शन मैंने यहाँ यूज़ नहीं किया और डिवीज़न मैंने यहाँ यूज़ नहीं किया. उसका कारण मैं आपको बाद में बता दूंगा, एग्जाम्पल से समझाऊंगा आपको, ठीक है. बट हाउएवर द सिस्टम ऑफ इरेशनल इज नॉट क्लोज्ड with respect to addition, subtraction, multiplication, division. That is, some difference, product and quotient of two irrational may or may not be always irrational. May or may not be. Okay, for example, suppose in my previous class I explained you what are irrational numbers. As you know, irrational numbers generally those numbers which power is root 2, like root 2. Root 2 is irrational number. This is clear, very clear. Root 3, root 5, root 6 means all the not perfect square numbers. Root 4 is not irrational. Root 4 is 2. ये मैं बता चुका हूँ आपको अच्छी तरह से. Suppose root 2. अब मैं आपको रूट 2 के बाद में बात करूँगी रूट 2 प्लस रूट 3, तो इट इज़ ऑल्सो रूट 3 प्लस root 2 means commutative. Just you know a plus b equal to b plus a. Now one thing मैं आपको एक बार और क्लियर करना चाहता हूँ कि ये commutative तो है, लेकिन कहीं ऐसे लिखा हुआ है रूट 2 प्लस 3 रूट 2, देन एडिशन इज पॉसिबल. आप इस तरह से समझिए, रूट 2 मतलब रूट 2 मीन्स one chair and this is 3 chair. 1 chair, root 2 is chair, suppose root 2 is chair, and 3 chair. Root 2 plus 3 root 2, that is 4 root 2. Like this we do addition easily. Okay, root 2, like this we do addition easily, ठीक. But sometime it is written root 2 plus root 3. So because these are unlike terms, root 2 is different, root 3 is different. One fan and one table. How can you add one fan plus one table? That is only one fan plus one table. Clear? ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए. मैं और क्लियर करता हूँ क्लियर आपको. रूट 7 प्लस 7 रूट 7. सिंपल बात. रूट 7 is suppose is a chair. Root 7 is a chair. 7 chairs. 7 chairs plus 1 chair, 8 chair. 8 root 7. Okay, sorry. Let's start again. So this is the first point. This is second point. This is third point. And one of the very important point. That's why I am using this red mark sketch pen. Suppose here is written root 2 and here is written root 8. So generally
it look like these are unlike terms, so you should write root 2 plus root 8 as it is. But one important thing you just see here, suppose root 8 is written over there. कोई भी रैशनल नंबर ऐसा है जो कि कंपोजिट नंबर है. कंपोजिट नंबर आप जानते हैं, कंपोजिट नंबर अगर प्राइम है तो प्रॉब्लम नहीं है, प्राइम है तो ब्रेक नहीं किया सकता. प्राइम है तो आपका रूट में ही रहेगा. वन नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, वो ये ऐसे ही रहेगा. लेकिन कोई कंपोजिट नंबर अगर रूट के अंदर बंद है तो उस कंपोजिट नंबर को हम ब्रेक कर सकते हैं रैशनल और इरेशनल फॉर्म में. मैं इसको ऐसे लिख दूँगा, अगर 4 × 2 तो आप जानते हैं रूट 4, इसका मतलब ये हो गया. इतना डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर मैं एक बार करके दिखा रहा हूँ आपको. रूट 4 × रूट 2 तो रूट 4 होता है 2, तो ये 2 √ 2 हो गया, 2 √ 2. तो इसका भी हम एडिशन कर सकते हैं क्योंकि रूट 8 का मीनिंग क्या होता है, रूट 8 का मीनिंग 2 √ 2 होता है. तो इसकी सेकंड स्टेप में हम ला सकते हैं रूट 2 प्लस 2 √ 2, तो ये हो गया आपका क्या, 3 √ 2. तो ध्यान रखना इस बात को कि जब कभी भी आपको कोई कंपोजिट नंबर, कंपोजिट ही प्राइम नंबर मिले तो आप बिल्कुल ध्यान मत रखना, बिल्कुल मत सोचना प्राइम नंबर ब्रेक नहीं होगा. प्राइम नंबर कभी ब्रेक नहीं होगा, उसके 2 ही फैक्टर होते हैं. लेकिन कभी कोई कंपोजिट नंबर आपको मिले तो आप इस बात का ध्यान रखना कि कंपोजिट नंबर इस तरह से ब्रेक हो जाता है. यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने दिया, एक एग्जांपल मैं और यहाँ पर देता हूँ. मान लो और लिखा है 63 √ 63. अब मैं जानता हूँ 63 होता है 9 × 7 = 63, 9 × 7. तो इसका मीनिंग 9 जो होता है 9 के अंदर 3 बाहर आ जाएगा, तो इसका मतलब हो गया 3 √ 7. ध्यान रखना इस बात को. तो कोई कंपोजिट नंबर जब आपको मिले, इस केस में एडिशन के केस में, इरेशनल दिख तो रहा है, इरेशनल हमें रूट 8 इरेशनल नंबर हमें दिख रहा है. रूट 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट नंबर नहीं है. लेकिन अगर वो कंपोजिट है, अगर वो ब्रेक हो सकता है तो आप उसमें से स्क्वायर पार्ट, जो परफेक्ट स्क्वायर पार्ट है, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं और फिर हम उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर देते हैं. ये बात मैंने आपकी क्लियर कर दी. ना सपोज एक और मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, आपकी दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, इसलिए एग्जांपल से मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ. सपोज़ कि कहीं आपको लिखा हुआ है कि इस तरह से ऐड लिखा हुआ है रूट 2 एंड -√2. अब आपको ऐड करना है, दोनों इरेशनल नंबर हैं, ठीक है. आपने लिखा रूट 2 प्लस -√2 लिखा आपने, तो इक्वल टू क्या आया, रूट 2 -√2 = 0. ये हो गया रैशनल नंबर, ये रैशनल है. तो ये एक्सेप्शनल केस हैं कभी कभी. तो ये इन एक्सेप्शनल केस को आप ध्यान रखना. पीछे के सारे रैशनल हो रहे थे, लेकिन ये एक्सेप्शनल आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा. इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा. ये 0 जो होता है वो रैशनल नंबर होता है. ध्यान रखिएगा, सारे रैशनल नंबर, सारे होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स रैशनल नंबर कहलाते हैं. इंटीजर्स भी रैशनल नंबर्स कहलाते हैं. ठीक, रैशनल नंबर डिफरेंट थिंग है. रैशनल नंबर का मतलब मैंने बताया था आपको, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, या समझिए रूट के अंदर बंद हो. और कंपोजिट नंबर रूट के अंदर है तो आप ब्रेक कर लीजिए. ठीक, एक और मैं आपको एग्जांपल यहाँ पर देता हूँ. आप सपोज करो मल्टीप्लिकेशन का केस मैं आपको बताऊँ. मल्टीप्लिकेशन केस में सपोज करो एक इरेशनल नंबर यहाँ लिखा हुआ है, एक इरेशनल नंबर यहाँ लिखा हुआ है, तो ये इनका मल्टीप्लाई हो जाता है, ये भी हो जाता है. ये फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ लिखा हुआ है रूट 3 × रूट 5, तो ईजीली इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 15. सिंपल सी बात. ये भी इरेशनल है. वो मैं आपको अभी एक टेबल बता दूंगा कि इरेशनल क्या होता है, रैशनल क्या होता है, बता दूंगा. ये आपका क्लियर हो गया आपका. और सपोज़ कहीं ऐसा लिखा हुआ है, देखिए फिर भी ये हर केस ले रहा हूँ मैं आपका, 2 √ 2 × 3 √ 5, तो ये केस है. यदि तो रैशनल का मल्टीप्लाई रैशनल से कर दीजिए, 2 × 3 = 6, और इरेशनल का मल्टीप्लाई इरेशनल से कर दीजिए, 5 × 2 = 10, तो इसको हम लिखेंगे 6 √ 10. बहुत सिंपल है. और आपको नेगेटिव साइन नहीं लगाया, चलो नेगेटिव साइन भी लगा देते हैं. नेगेटिव में मान लो लिख दिया 3 √ 5, और यहाँ लिख दिया मल्टीपल 2 √ 3 लिख दिया सपोज करो, तो वही माइनस का साइन काम करेगा. -3 × 2 -6, और रूट की संख्या का रूट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रेशनल नंबर का 5 या 15,
-6 इंटू 15 आ गया। तो ये बात आपको एकदम से समझ में आ रही होगी। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात मल्टीप्लिकेशन में जो आपको बता रहा हूँ, मैं रेड पेन फिर से यूज़ कर रहा हूँ, ये बता रहा हूँ मैं आपको कि √n इंटू √n इक्वल टू, अगर चाहे तो आप समझ सकते हैं कि ये हो गया √n², और n² का मतलब हो गया ओनली n। तो ये बात आप समझिए, कहीं पर ऐसे लिखा है √5 इंटू √5 लिखा है, तो आप इसको ऐसे मत लिखिए। √25 आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे 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 लिख दीजिए 5। सिंपल सी बात है, ये बात क्लियर है। कहीं लिखा है √7 इंटू √7, दैट इज सिंपल 7। √3 इंटू √3, दैट इज सिंपल √3, बिकॉज 9 हो जाएगा, 9 के बाद 3 का 12 जाएगा, तो दिस इज 3। और कहीं ऐसा लिखा हुआ है 2√3 मल्टीपल 5√3। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, देखिए 2 5 10 हो गया, 2 5 10 हो गया, 10। मैं इतनी ज़रूरत नहीं है लिखने की, मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको, पहली बार समझ रहे हैं आप, 8th क्लास से आए हैं। और √3 3 होगा, मैंने बताया था, तो 10 इंटू 3, 10 इंटू 3 का मतलब क्या हो गया 30। तो यानी कि इसका मीनिंग जो हो गया, वो 30 है। आप डायरेक्ट 30 लिख सकते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिखाया है, क्योंकि आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए। और माइनस का साइन लगा है, घबराइए मत। यहाँ लिखा है √5, यहाँ लिखा है इंटू 7√5, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 7 1 7, माइनस का 7 ये हो गया। √5 आप जानते हैं 5 हो गया, तो 5 हो गया, तो सिंपल आपका हो गया √35। आप इस स्टेप को मत लिखिए, आपकी सीधे डायरेक्ट स्टेप आपकी ये वाली स्टेप आएगी। तो ये मैंने मल्टीप्लिकेशन सिखा दिया, इस बात पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इस बात पर मल्टीप्लिकेशन की बात दीजिएगा। और दूसरी उस बात पर ध्यान दीजिएगा कि जब भी कोई कंपोजिट नंबर रूट के अंदर आता है, तो उसको हम ब्रेक कर लेते हैं, जिससे कि वो उस फॉर्म में आ सकता है कि वो एडिशन सब्ट्रैक्शन उसका हो जाए। तो ये आपको मैंने इर्रेशनल नंबर के बारे में बात बता दी यहाँ तक। अब एक चीज़, थोड़ी सी चीज़ मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दूँ मैं आपको, वो आप ध्यान रखिएगा कि रैशनल प्लस इर्रेशनल हमेशा इर्रेशनल ही होगा। यानी कि अगर मैं लिख दूँ 2 + √5, तो ये 2 + √5 ही लिखा रहेगा, और 2 + √5 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। ये बात आप ध्यान रखिए। और आप ध्यान रखिए, रैशनल माइनस इर्रेशनल ये हमेशा इर्रेशनल होगा, ये बात भी ध्यान रखिए आप हमेशा। यदि 2√3 लिखा है, सपोज करो अदर एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो, और माइनस का √3 भी लिखा हुआ है, तो ऑपरेशन तो होगा। 2√3, 2 टेबल में से एक टेबल माइनस गई, तो एक टेबल बची, √3 बचा, तो √3 भी क्या है, ये भी तो इरेशनल है, इरेशनल ही होगा। तो ये बातें जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, इन चीज़ों को आप ध्यान बिल्कुल दीजिएगा। आर का मतलब रैशनल है और आई का मतलब इरेशनल है। एक बात तो ध्यान रखिए आप, रैशनल इनटू इरेशनल, यहाँ एक्सेप्शनल केस कभी कभी आ जाते हैं, ये एक्चुअल में तो इरेशनल होता है और मे भी रैशनल भी हो जाता है कभी कभी। मैं दोनों एग्जांपल देता हूँ मैं आपको इस चीज़ के। जैसे मान लो ये लिखा है 3 × 2√2। अब ठीक है भाई, 3 2 या 6 तो हो गया, 6√2, 6√2 रैशनल इरेशनल, रैशनल ये है, ये इरेशनल है, इरेशनल ही होगा, ये भी एक इरेशनल है। अब ये केस अलग बात है कि यहाँ लिखा हुआ है 2√3 और इंटू √3, ये लिखा हुआ है सपोज करो, तो 2 तो 2 रहा, √3 और √3 क्या हो गया, √9 का मतलब 3 हो गया, तो 2 3 6 हो गया, तो 6 हो गया। यहाँ इस केस में ये रैशनल हो रहा है। तो ये कुछ एक्सेप्शनल केस हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेंगे समटाइम। और डिवीज़न का जहाँ तक केस है, सपोज करो लिखा है √7 माइनस √7 अपॉन √7, तो नेचुरल है, ये माइनस का 1 हो गया, यानी कि ये रैशनल हो गया, आपको बता रहा हूँ मैं, ये भी एक्सेप्शनल केस है। लेकिन ध्यान रखिए आप कि इसका जो रैशनल और इरेशनल का डिवीज़न जो आता है, वो मे और मे नॉट भी, मोस्ट पॉसिबली रैशनल होता है, बट मे बी
बट मे बी सम केसेस में, जैसे मैंने आपको बताया, मे बी सम केसेस में ये रैशनल भी हो सकता है। इसको हम कहते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा बहुत अच्छी तरह से। तो ये आपके ऑपरेशंस हो गए रैशनल और इरेशनल के। कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पर 2-3 और देता हूँ, यहाँ पर नीचे की लाइन में कुछ एग्जांपल दे देता हूँ जिससे और क्लियर कर देता हूँ मैं आपकी हर चीज़ को। सपोज करो आपको एक क्वेश्चन आया कि सिंप्लीफाई 2 + √3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - √2 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई के आगे एक बात तो लिखी है, एंड डिटरमाइन DETERMI डिटरमाइन इट इज रैशनल और इरेशनल। चलो ये बता दिया मैंने आपको, ठीक। अब मैं आपको नेक्स्ट पेज पे समझा देता हूँ। नाउ तो हमें इसे डिटरमाइन करना है कि ये रैशनल है कि इरेशनल है। अभी हम देख कर नहीं बता सकते, तो हमें इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए आपको दिख रहा है ये a + b का होल स्क्वायर है, वैसे ही वर्क करेगा। 2 का स्क्वायर हम करेंगे, 2 का स्क्वायर मैं लिख रहा हूँ, ज़रूरत नहीं समझ रहा। 2 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 × 2 × √3 प्लस आगे एक प्लस लगा हुआ है, 3 - √2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर √2 का स्क्वायर माइनस 2ab -2 × 3 × √2। अब जब हम देखेंगे √2 का स्क्वायर 4। अब √3 का स्क्वायर मतलब √3 × √3 यानी ओनली 3, और 2 × 2 या 4 √3। ये आपकी ये टर्म क्लियर हो गई। प्लस आगे 3 का स्क्वायर 3 × 3 = 9, √2 का स्क्वायर मतलब √2 का √2 से मल्टीप्लाई यानी 2, और माइनस के ये आपके कितने हो गए 2 × 3 2 × 6 √2। और अब आप उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। 4 + 3 आप जानते हैं 7 + 9 आप करेंगे तो आप जानते हैं 7 + 9 16 और 2 करेंगे आप तो 18। तो आपका 18 तो रैशनल नंबर जुड़ गए सारे सारे। अब बात बची रैशनल नंबर की, तो ये नंबर बचा एक और ये नंबर बचा। 4 √3 -6 √2 दोनों अनलाइक टर्म्स हैं आपस में। 4 √3 4 टेबल हैं, ये 6 फैन हैं, आपस में जुड़ घट नहीं सकते हैं, ऐसे ही लिख देंगे हम इसको। तो प्लस के 4 √3 और माइनस के 6 √2, ये आपका एक इरेशनल नंबर है कम्प्लीटली। दिस इज इरेशनल नंबर। तो इस तरह से आप सिंप्लीफाई करना भी सीख जाएंगे। आपको डिटरमाइन करने को आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज दी हुई है, ध्यान दीजिएगा। डिटरमाइन द फॉलोइंग आर रैशनल और इरेशनल। वो एक्सरसाइज 1.2 है। 1.2 में यही दिया है सब कुछ। 1.1 वाला मैं सिखा चुका हूँ आपको। 1.2 आप आज पूरी क्लियर कर देंगे डिटरमाइन करने के बाद। हाँ, वन इम्पोर्टेंट थिंग मैं आपको थोड़ा सा और समझा दूँ एक बार। ये बार बार मैं √2 बोल रहा हूँ आपसे। इसका मतलब क्या होता है सपोज करो, इसका मतलब होता है √2 मान लो लिखा है, इसका मीनिंग ये होता है कि 2 की पावर 1/2। यहाँ लिखते नहीं है, यहाँ 2 लिखते नहीं है, इसका ऑर्डर 1/2 होता है। इसी तरह से अगर आपको मैं ये बात समझाऊँ कि क्यों होता है 1/2, अगर मैंने 4 लिख दिया सपोज करो, 4 लिख दिया। अब आप जाते हैं 4 को मैं लिखता हूँ क्या 2 की पावर 2 और रूट लगा हुआ है, और रूट का मतलब पावर 1/2 होता है। तो मैंने लिख दिया 2 की पावर 2 होल की पावर 1/2। इतना आप 8th क्लास में पढ़ के आए हैं। एक्सपोनेंट a to the power m × a to the power n a to the power m × n हो जाती है। तो 2 की पावर क्या हो गई 2 × 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। फाइनली √4 जो हो गया वो 2 ही होता है और 2 ही होके आया। लेकिन कहीं इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ स्टार लगा रहा हूँ मैं आपको, कहीं अगर ऐसा लिखा हुआ है √2 और यहाँ 3 लगा हुआ है, यहाँ 3, यहाँ पर 3 लगा हुआ है। फिर से काट रहा हूँ, एक बार समझा रहा हूँ फिर से। यहाँ 2 है और यहाँ 3 लिखा हुआ है। इसका मीनिंग ये हुआ कि 2 की पावर 1/3
इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका मतलब यदि कहीं ऐसा लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ है और यहाँ पर 3 लिखा है, ये ऑर्डर बोलते हैं इसको हम, ऑर्डर ऑफ 3, यानी 8 की पावर 1/3। 8 की पावर 1/3 का मतलब क्या समझे आप? 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया, और ये पावर इसकी हो गई क्या? 1/3, 1/3 हो गई इसका पावर का मतलब 1/3 हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 की पावर 3 होल की पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, इसका मतलब 2। तो इसका मीनिंग 2 होता है। हालांकि ये हमारे सिलेबस से एनसीईआरटी से थोड़ा सा हट गया है, लेकिन आईसीएसई सिलेबस में दिया हुआ है। और एनसीईआरटी के कुछ अच्छे कंपटीशन क्वेश्चंस में असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर आता है, जहाँ पर ऑर्डर चेंज कर देते हैं, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। √2, √3 लगा दिया यहाँ पर, √5 यहाँ पर 3 लगा दिया, यहाँ √7, यहाँ 4 लगा दिया। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो ये मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आईसीएसई सिलेबस में है। मैं चाहता हूँ आपको एक कंप्लीट पैकेज दूँ। एनसीईआरटी में आपको कहीं नहीं दिखेगा, आरडी शर्मा में आपको कहीं नहीं दिखेगा, लेकिन आईसीएसई में है और कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूँगा नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो आज की क्लास में मैंने आपको सिर्फ ये समझाया कि ऑपरेशन कैसे करते हैं। आप एक्सरसाइज 1.2 पूरी कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा। अब ये क्लास कंटिन्यूटी में रहेगी। हो सकता है एक आध दिन डिसकंटिन्यूटी हो इस क्लास में, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है उसको आप ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा। मैंने हर चीज़ का एग्जाम्पल दिया है आपको, और आप अपनी एक्सरसाइज 1.2 पूरी कीजिए। मुझे आशा है, आई होप दैट यू लाइक टुडेज क्लास, एंड आई होप दैट you watch this class 2 or 3 times and follow my instructions and complete your exercise 2.2. If you have any doubt, then please write in the comment box, and in the end of last sentence wise that please like करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सिर्फ एक गैप था, छोटा गैप एक फिर भी आएगा, लेकिन ये क्लास कंटिन्यू हमेशा रहेगी। थैंक यू।